सर्वे तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. Namaskar. I offer my pranam to Guru Rohini ji. On behalf of Nritya Bharati Kathak Dance Academy, I welcome you all to the celebration of the 75th year of our institute, to Smruti Gandh, the opening event of the Amrut Mahotsav. First of all, we pray for the health and comfort of one and all. The current situation does not allow our dancers to celebrate by dancing their hearts out on the stage. But that opens doors to experience another such celebration, which was very special. And that too in the presence of you all from the corners of the world. We are presenting glimpses today of our Golden Jubilee celebration, and the program then was titled Sanchit or Srujan. The presence of Guru Rohini ji in this program will definitely boost the energy of all the dancers, which has been held back for quite some time. We have got 3 wonderful dignitaries on the virtual stage of today, and they have been kind to send their messages to be shown here. We first request the Mayor of Pune, Mr. Murlidhar Mohol, to speak. नमस्कार. आपलं पुणे शहर एक विद्येचं माहेरघर आणि या राज्याची सांस्कृतिक राजधानी. या पुणे शहराने या देशाला वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अनेक मोठी रत्न दिली असं म्हटलं तर गैर होणार नाही. त्याच्यामध्ये मग सांस्कृतिक क्षेत्र असेल, सामाजिक क्षेत्र असतील, कला, क्रीडा, साहित्य या सगळ्या क्षेत्रामध्ये या पुणे शहरानं खूप मोठी माणसं समाजाला दिली. एक मोठी वैभवशाली परंपरा या शहराची आहे. आज त्यातलाच एक महत्त्वाचा घटक म्हणून मी नृत्य भारतीचा उल्लेख करीन. 75 वर्षापूर्वी या संस्थेची स्थापना गुरु रोहिणी भाटे यांनी केली आणि पाहता पाहता आज आपण बघतो की अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये ही संस्था पदार्पण करते आहे. सर्वप्रथम मी मनापासून या संस्थेला शुभेच्छा व्यक्त करतो. गेल्या 75 वर्षामध्ये अनेक नामवंत कलाकार या संस्थेने घडवले. गुरु रोहिणी भाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज खूप चांगले कलाकार नव्यानं या शहरामध्ये निर्माण झाले आणि या कथक नृत्याचे एक वेगळी ओळख मला असं वाटतं की रोहिणीताईंनी या संस्थेच्या माध्यमातून समाजासमोर आणली. खरंच एखादी संस्था सुरू करणं आणि इतके वर्ष ती चालवणं हे काही सोपं काम नाही. एखादा मोठा कलाकार ज्या स्वतः रोहिणीताईंना अगदी स्थानिक पातळीपासून ते देश पातळीपर्यंत अनेक पुरस्कारांना सन्मानित केलं गेलं, अशा ह्या व्यक्तीकडून ही संस्था चालवली गेली आणि म्हणूनच मला असं वाटतं स्वाभाविकपणे त्याचं यश हे तितकंच मोठं आहे. त्यामुळे या शहराच्या सांस्कृतिक वैभवामध्ये भर घालणारं काम हे नृत्य भारती या संस्थेने केलं आहे असं मी या ठिकाणी म्हणेन. त्यामुळे या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं या संस्थेला मी पुणेकरांच्या वतीनं मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. The mayor also obliged us by inaugurating the new website of Nritya Bharati. We are extremely thankful to him. Here is a glance at the progression of Nritya Bharati through the 75 years.
The website speaks about our institute, our guiding light, Guru Rohini Bhate. It gives wonderful pictures of her creations. It shows a very promising future through the torchbearers of the institute and much more. In this monumental journey of Nritya Bharati, Guru Rohini ji received huge sustained support from her family, and so did Nritya Bharati in turn. We are very happy to have with us today her son, Captain Sanat Bhate from Merchant Marine. 75 years ago, there was no classical dance in Pune. No Kathak, neither Bharatanatyam nor any other classical style. At that time, in a dingy little room on the first floor near Lakdi Pool, Nritya Bharati was started. And now, after 75 years, जो एक ध्यास लिया था रोहिणी जी ने, वो पूरा हुआ दिखाई देता है. There are more classical dances in Pune than any other large city in India, of all styles, mainly Kathak, but all styles. It's become a banyan tree, Vatavruksha. So many teachers who all were from Nritya Bharati's main branch. They've grown, phale hai, phule hai. And today we are proud that the new generation is really going ahead with the thought that was started by Rohini ji 75 years ago. Today's Kathak dance changed in its format, in its presentation, and gurus of yesterday, Mohan Raji Kalyanpurkar, Lachu Maharaj ji, and Birju Maharaj ji's Ashirwad, where we stand today, we are 200% sure that classical dance, Kathak's future, is ensured into eternity. Thank you all. Thank you, Sanatji. Today we find ourselves extremely fortunate to receive blessings from none other than Nritya Samrat Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj. He has observed Guru Rohini ji's work and the progression of Nritya Bharati over a long period. It is a happy coincidence that we are going to see him in the Golden Jubilee celebrations too. मुझे बड़ी खुशी हो रही ये कहते हुए कि नृत्य भारती को 75 साल हो चुके हैं, तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामना है कि आगे भी ऐसी काम करती रहें. कला का विकास और समझाना, लोगों को, बच्चों को बनाना, ये करते रहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ. Our sincere thanks and pranams to Pandit Birju Maharaj. We are very happy to express our gratitude to members
of the advisory committee of the Amrit Mahotsav. Thank you all for extending your support for this year-long endeavor of Nritya Bharati. In the advisory committee, we have Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj, Padma Bhushan Srimati Kumudini Lakhia, poet and cultural administrator Shri Ashok Vajpayee, Sangeet Natak Academy awardee Dr. Mohan Agashe, Padma Shri Professor Sati Shalekar, Sangeet Natak Academy awardee Srimati Prerna Shrimali, Dhrupad Gayak Pandit Uday Bhavalkar, Tabla Maestro Pandit Arvind Kumar Azad, Vidushi Dr. Chetana Jyotishi, Sangeet Natak Academy Secretary Dance Srimati Helen Acharya, Kathak exponent Srimati Susmita Ghosh, renowned critic Srimati Manjari Sinha, and dance historian Shri Ashish Khokar. We welcome you all to watch the performance with us. We are sure that this performance Smritigandh is going to bring joy to the dancers, musicians, dance lovers, artists who have seen Guru Rohini ji perform. And we are hoping that this inspires and guides the new generation by watching Guru Rohini ji dance, by watching her variety of creations and her vision of presenting a milestone performance like this. And also we are extremely proud that there are 6 generations of dancers at Nritya Bharati at present who are celebrating this event together, right from the very first batch of disciples of Guru Rohini ji. We welcome you all to this wonderful performance, Smritigandh. Thank you. सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा Om Shanti Shanti Shanti. पंडित बिरजू महाराज जी, नृत्य भारती के सम्माननीय अध्यक्ष और नृत्य भारती की सलाहकार समिति के सब माननीय सदस्य और आप लोग रसिक जन, सब लोगों को मेरा सविनय प्रणाम। आज नृत्य भारती का स्वर्ण महोत्सव परिपूर्ति की तरफ जा रहा है और इस समय मुझे मेरे 2 प्रख्यात गुरुओं की याद बहुत ही आर्तता के साथ आ रही है। मेरे गुरुजी पंडित लच्छू महाराज जी तथा पंडित मोहनराव कल्याणपुरकर जी, इनकी छत्र छाया में ही मैं पली हूँ। गुरु शिष्य परंपरा की तरह से मैं सीखी हूँ और कुछ ज्ञानकण जो मेरे अंजुड़ी में गिर पड़े वही मेरा संचित बना है। ये संचित
इसके अनेक पहलू थे और इन पहलुओं को मैं जब प्रस्तुत करने जा रही थी वो सब पहलू धीरे धीरे सृजन में रूपांतरित हुए। संचित और सृजन, परंपरा और नवता, इनके बीच में जो एक सूक्ष्म रेशा रहती है वो रेशा कब की मिट गई मुझे पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे ऐसे हुआ कि यह संचित का हर पहलू सृजन ही हो गया। सिखाना सृजनात्मक हो गया, सीखना सृजनात्मक हुआ, प्रस्तुति सृजनात्मक होने लगी और आनंद तो कमाल का बढ़ गया। अब यही आनंद मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ और इसलिए परंपरागत गणेश वंदना के साथ मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। उसके बाद 3 ताल जो तालों का राजा है उसके आंगन में कुछ खेल भी दिखाएंगे। तो शुरू में गणेश वंदना, संचित और सृजन। Ganesh Vandana, an invocation to Lord Ganesh, a depiction of his beauty, dance and elegance. Sindhura Vadana Madana Samasundara Lamba Udara Shashi Pashankitakara.
Teen Tal. Here is an innovative presentation of the traditional way of dancing to Teen Tal with various designs adorning the basic time cycle of 16 beats through its progression from the slow tempo to the fast.
गे दी गे ता धा ता धा धक ट धक दिग नाग गे टिक ट धा धक दिग नाग गे टिक टिक ट ट टिक ट धिक ट धिक ट धा टिक ट धिक ट धिक ट धिक ट धा तड़ धा
मक्खन चोरी।
महाराज जी हम सभी कथक नर्तकों के लिए आदर्श है और उन्होंने जो सभी कथक प्रेमियों को आनंद दिया है उसके लिए हम सब उनके बहुत ही ऋणी हैं। आज का यह सत्कार उसी कृतज्ञता का एक प्रतीक है। हम आज नृत्य भारती की तरफ से उन्हें मानपत्र अर्पित करना चाहते हैं। इस मानपत्र का प्रथम पठन रोहिणी जी करेगी। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के चरणों में नृत्य भारती का मानपत्र। आप कथक की 7 ऊर्जस्वल पीढ़ियों की अथक प्रातिभ साधना का श्रेष्ठतम निष्कर्ष हैं, साक्षात उत्कर्ष हैं तथा एकमेव मानदंड भी। कथक के भूतकालीन महात्म्य की समकालीन पूर्ति आप हैं। समस्त नृत्य जगत की अभिजातता का वर्तमान साक्षात्कार आप हैं और आप हैं कथक के नवसृजनात्मक भविष्य के दृष्टा तथा नियंता भी। लय, लालित्य तथा भावात्मता इन त्रिविध गुण विशेषों द्वारा दिक् कालादि आदि तत्वों को सहज मंडित करते हैं आप। रसिक सहृदयों को रस सागर में नहलाते हैं आप। कृपा रहे अपार ईश्वर की आप पर, आयुरारोग्य संपन्न रहे आप। अब रोहिणी जी के हाथों महाराज जी का सत्कार किया जाएगा। मैं आज इतना मुझे मेरा मन के अंदर इतनी खुशी हर्ष है कि शब्दों में कहना तो मुश्किल है। और मैं बेबीताई करके तो नहीं जानता, लेकिन दीदी ज़रूर कहता रहा। मैं रोहिणी जी को मैं दीदी कह के शुरू से ही, क्योंकि मैं एक ज़माने में म्यूज़िक कॉलेज में जब कभी कभी आती थी तो मैं बहुत छोटा था। वो तस्वीर शायद अभी भी है और मैं तब से इनके लिए जानता भी हूँ। और मोहन राव जी से भी, क्योंकि हमारा आना जाना खूब रहा, बैठते थे हम लोग। दीदी के प्रयास, लगन, जो इन्होंने दीप जलाया है कला का, नृत्य का, संगीत का, उसमें सना हुआ कोई सत्कार जब होता है ना, तो तमाम कितनी सत्कारों से बड़ा होता है। आज का सत्कार में जो प्यार है, जो गुरु के प्रति श्रद्धा है, जिनके चचा मेरे लक्ष्मी महाराज मेरे चचा ही थे। कला का दीप जला लेना तो तब भी शायद आसान है, लेकिन उसको आंधी और तूफान से बचाना बड़ा मुश्किल है।
तमाम आंधी और तूफान जीवन में आते हैं और फिर हम ईमानदारी पे अपनी कला के अटल रहें। न जाने क्या क्या दुनिया में लोभ पैदा होता है, ये कर लीजिए नहीं तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन आदमी अपने ईमानदारी पे अगर जमा रहे, उसी जगह उचित ढंग से काम करता हो और अपने जैसे 10 को बनाने की ताकत रखता हो, सच में वो कलाकार होता है। अकेले हम खुद खुश हो जाएं, हम अपने आप नाच लें, अपने आप वहीं तक समाप्त हो जाए, तो जिम्मेदारी तो कुछ निभाई नहीं गई। पर हम अपनी कला को 10 लोगों में बांट सकें, जो दीदी ने बड़े आराम से इतने वर्षों से नृत्य भारती के नाम से जैसे हम जानते हैं, इतने अरसे से ये ऐसे काम कर रही हैं, सुरीला लयदार, ये जो ज़रूरत है कला के लिए वो सबसे सब तरह से सजा हुआ है। यानी कि अर्ध श्रृंगार नहीं बल्कि पूर्ण श्रृंगार कला का करना ही इनके द्वारा हुआ है। उस बात से मैं बहुत ही मुझे हर्षित है। पूर्ण श्रृंगार से मतलब ये है कि अगर आपने नथी पहना दी और टीका लगाना भूल गए कला को, या आपने कान में बुंदा पहनाना भूल गए, तो वो पूर्ण नहीं होता है। 16 श्रृंगार करके कला को खड़ा कर देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि इनके जीवन में मैंने देखा। और लगन, बाप रे, किस हालत में इन्होंने चलती आ रही हैं। और प्यार देखिए, सिर्फ कला सीख लेना ही उचित नहीं है। कला सीख लिया हमने, टेक्निकल ये सीख लिया वो सीख लिया, इससे नहीं होता है। सबसे पहला प्यार चाहिए, उसके प्रति आदर चाहिए, उसके प्रति लगन चाहिए, उसके प्रति उसके अंदर हम जो खेलते हैं उसके साथ, अपनी मात्राओं के साथ, लय के साथ, अपने स्वर के साथ, एक एक एक्सप्रेशन के साथ, अभिनय के साथ। तो मुझे लगता है वो प्रत्यक्ष जो हमारी कल्पना है वो सामने हमारे लोगों के खड़ी हो जाती है। वो कल्पना हमने दीदी में देखा। इतना मैं प्रभावित हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं बहुत, जितने बच्चे सीख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने अरसे तक, इतनी, यानी हमारे यहाँ जो शौक़ किया जाता है डांस का, वो होता है कि 18 तक सीखे, 20 तक सीखे, 25 तक सीखे, उसके बाद छोड़ छाड़ के, हमारी तरफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ सब के गृहस्थी है, सब कुछ है, लेकिन नृत्य अपनी जगह बना हुआ है, कला अपनी जगह बनी हुई है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये देखकर तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी को भी, और इन बच्चों को मेरा बहुत आशीर्वाद। और आप रसिक जनता, आप न हो तो वो पानी गहरा नहीं बनेगा जिसमें हम तैरना चाहते हैं। तो ये कहते हुए बहुत मुझे आनंद हो रहा, दोबारा कह रहा हूँ। और इत सब बच्चों ने नाचा, उनके पैर देखे, हाथ देखे, उनके चेहरे देखे, उनके आँखों के भाव देखे, बड़े गौर से मैं देख रहा था। हम तो बहुत ही गौर से देखेंगे, आप समझ लीजिए कि मतलब, क्योंकि 50 साल मेरे भी सब इसी ज़िंदगी के साथ सब चलता जा रहा है और सब आप लोगों की कृपा है, वरना तो बहुत क्षण में ख़त्म हो जाती है बात। लेकिन आप लोगों की कृपा है। और दीर्घायु हो हमारी दीदी, और एक नहीं हज़ारों को बनाए, तब आनंद है। हम तो ये चाह रहे हैं। During its golden jubilee, Nritya Bharati enjoyed blessings from an array of brilliant personalities as its then advisory committee. इस स्वर्ण महोत्सव के लिए एक सलाहकारों की समिति बनाई गई थी। आज बहुत खुशी हो रही है कि इस सलाहकार समिति के अधिकांश सदस्य मंच पर उपस्थित है। हम सभी उनका स्वागत करना चाहते हैं और रोहिणी जी के हाथों उनका सत्कार भी करना चाहते हैं। उन्हें नम्र अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले है श्रीमती ज्योत्सनाताई भोड़े। पंडित जी भी आज यहाँ आए हैं, पंडित भीमसेन जी जोशी।
श्रीयुत जयंत नारळीकर जी, श्रीयुत अशोक रानडे जी, श्रीयुत रवि परांजपे जी, श्रीयुत भाई गायतोंडे जी, श्रीयुत भास्कर चंदावरकर जी, श्रीमती सुमित्रा भावे, इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष और नृत्य भारती के अध्यक्ष श्रीयुत अशोक केड़कर, और अंत में आज की मेहमान श्रीमती शाश्वती सेन। In 1947, Guru Rohini ji brought Kathak to Pune and cultivated Pune into a center of Kathak by the Silver Jubilee. In this year, she brought all the Indian classical dance styles to Pune by organizing grand programs every month. In the Golden Jubilee year, she felicitated heads of all dance schools in Maharashtra and brought male dancers to Pune in a glorious event called Nritya Ojas. It was the debut of all of them in Pune. Through her silent but steady and strong steps, she brought a reform in Maharashtrian frame of mind regarding dance and male dancing too, the effects of which are apparent today. Triveni, a sequence of 3 pure dance pieces, Natavari, Sargam and Tarana. With her insight in dance, the music compositions created by Guru Rohini ji adorn the movement of Kathak to its best. In this devotional number, Saint poet Surdas says that he didn't find comfort or joy no matter how much he loved or surrendered himself. He gives an example of a deer. Being engrossed completely in music, the deer faces an arrow right from the front.
प्रीति करी काहूँ सुख ना लयो। प्रीति को रंग करे जो नाद सो, 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 प्रीति को रंग करे जो नाद सो। प्रीति को रंग करे जो नाद सो, प्रीति को रंग करे जो नाद सो, सम्मुख बाण सयो, सम्मुख बाण सयो, सम्मुख बाण सयो, प्रीति करे काहूँ सुख ना लयो, प्रीति करे काहूँ सुख ना लयो। Vartaman Gupta Naika. In the vast subject of portraying Naikas or heroines in different situations, this one is used rarely. In spite of being married, this Naika has another love interest. There is a playfulness and a kind of innocence in the cover up that she creates after what actually happens.
And now, in terms of glimpses, we present the thematic aspect of Guru Rohiniji's creations. Time. Time is a ballet in the form of a sequence of expressions of Guru Rohiniji inspired by a poem, which she superimposed on a music composed by a Western composer. She says, time teases in anticipation, freezes in design. What is time? A friend or a foe? Or only a witness? Time simply is. Mourn. This is an interpretation of Gurudev Rabindranath Tagore's poem. Mourn is not silence, but the voice of the Absolute. Mourn is the way of communication without words and beyond meaning. मौन भक्ति का मधुर तरल साक्षात्कार है। मौन है प्रिय का प्रिय से शब्दातीत संवाद। मौन मौन नहीं, बैखरी है ईश्वरी। वे तुम्हारे बोल, वे तुम्हारे बोल
वे तुम्हारे बोल वे तुम्हारे बोल मेरी पंछियों की चहक में तब उड़ चलेंगे। वे तुम्हारे बोल मेरी पंछियों के चहक में तब उड़ चलेंगे। वे तुम्हारे गीत मेरे कुंज कुसुमों पर के गूंजन भर चलेंगे। After visiting Guru Rohini Ji's extensions of Kathak with the abstract subjects, we will now experience her elaborations in Abhinay, the expressive aspect of Kathak. Doha. A doha is a category of poetry in Hindi. Baji ghar aayi. Here Guru Rohini Ji has expressed this doha as a duet, describing the damsels who cannot resist to listen to the flute of Krishna. Virahotkanthita. This is a Naika or a heroine suffering from the pangs of separation. The folklore of North India offers songs of separation related to every season. We now present glimpses of 2 such songs choreographed by Guru Rohini Ji. A song for the rainy season, the Varsha Ritu. गह की घन उठती हैं चहुधाते. Heavy clouds in the sky of the rainy season make the Naika feel even more depressed. गह की उठत है चहुधात. गह की उठत है चहुधात. पियो पियो नाव, पियो पियो नाव, पियो पियो नाव, चातक नदिया गए. पियो पियो नाव, चातक नदिया गए. मोर सोर करे कोना खटकती है. मोर सोर करे कोना खटकती है. गहकी उठते हैं चहुधात है. The song for the spring season or the Basant Ritu is Vrichchanike Kunjani me Gunjani Dvire Phaniki. The pleasurable things like a cool breeze or the sonorous singing of a bird are bothering the heroine. कुंजनी में
Now, we conclude today's program with a bhajan or a devotional number performed by Guru Rohini ji. This bhajan is in praise of Lord Ram. This depicts an important event of Ramayana, where Sita was abducted by Ravan and then Ram saved her by winning over him. Aise Ram Jagat Hitakari. This masterpiece, choreographed by Guru Rohini ji, has its lyrics and music created by the late Pandit Bindadin Maharaj. समर प्रचार प्रचारी राम समर प्रचार प्रचारी भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि प्रचार प्रचारी राम समर प्रचार प्रचारी आए शरण तब दोष गिनो नहीं आए शरण तब दोष गिनो नहीं बिना भजन दियो तारी राम बिना भजन दियो तारी ऐसे राम जगत हितकारी ऐसे राम जगत हितकारी
Take it,